Rishi Nityapragya ji is the director of programs in the largest volunteer-based non-profit NGO of the world, the Art of Living Foundation. Founded by His Holiness Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ji, the Art of Living Foundation is active in 156 countries. Associated with the UN and the WHO, it has over 5,000 centers and has touched the lives of more than 55 million people world over. Rishiji, in his role as the director, also trains the teachers and volunteers of the Art of Living Foundation. He is a qualified chemical engineer, has had a successful corporate career, and was a financing partner in a software development firm. One of the top motorbike racers and even a professional singer. But beyond this, he is blessed with a macro vision and extremely precise micro action, which is evidently reflected on the course of work he has done over the years. Rishi means a seer, an explorer, a mentor. This modern Rishi can be rightly described as a spiritual scientist. This charismatic personality with a childlike innocence is always seen bursting with love and energy, with a never-dying enthusiasm to serve humanity. He feels service is nothing but taking higher and higher responsibility of the whole creation. With his laser-sharp awareness and a scientific approach towards life, he has been exploring the technicalities of the consciousness to its minutest details for the past 27 years. He has derived many transformative, practical formulas that he calls Swadhyay, self-exploration, which is the essence of his teachings. The nature has bestowed infinite powers on each individual. Rishiji provides an extremely meticulous spiritual curriculum that can help people find their true nature. He believes once you recognize your infinite potential within, effortlessly your life becomes a celebration. Rishiji's teachings of Swadhyay, the science of self-exploration, has brought humongous transformations in lives of people across the globe, from students to corporate executives, from doctors to industrialists, from lawyers to educationists. Anyone who has ever participated in programs with him have always gone back with a wow. To know him is to be touched by his divine presence, his profound knowledge, and his soul-stirring melodies. Rishi Nityapragya, a teacher, a mentor, a spiritual guide, a research scientist, an author, a singer. This magic personified calls himself a student of life. ये सब के सब इंट्रोडक्शंस एक्चुअली एक ही लाइन में आ जाते हैं. आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लाइफ. सचमुच. कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट टुडे, साइंस ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग इज द सब्जेक्ट. उसमें आई होप हिंदी एंड इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी ओके फॉर एवरीवन. देखिए, जिस चेतना से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, यूनिवर्स बना है, उसी चेतना से हम भी बने हैं. मैं जब कहता हूं हम, मैं यहां पर रेफर कर रहा हूं एवरीथिंग दैट वी आर कनेक्टेड विथ. यानी मैं अगर एक एक व्यक्ति के जीवन को देखूं तो ऐसा समझो जैसे हर व्यक्ति का जीवन ना एक एक क्षण करते करते पास हो रहा है. उसमें हर क्षण दो विभागों वाला जीवन दिखेगा. बाहर की दुनिया है और अंदर की दुनिया. अच्छा, बाहर की दुनिया बनी है व्यक्ति, वस्तु व परिस्थिति से. अंदर की दुनिया बनी है 7 सेक्शन से. ये समझने जैसी बात. शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इन सब के द्वारा जीवन का अनुभव करने वाले हम जीव. तो जब हम कहते हैं मैं या आप, हम इन शरीरों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, हम जीव के बारे में बात करते हैं. ये शरीर जिसने अभी के लिए अख्तियार किया है, अडॉप्ट किया है, वो जीव है ये. अच्छा, नाउ आप हम अगर सिर्फ इस जीव की बात करें तो क्या है, देखिए, जिस चेतना से हम बने हैं, जिस चेतना से जीव बना है, उसी चेतना से शरीर भी बना है. अच्छा, शरीर की संरचना कैसी है? एलोपैथी वे ऑफ मेडिसिन में 11 सिस्टम्स बताए शरीर के,
और आयुर्वेदिक सिस्टम में अलग तरीके से उसको समझाया गया, होम्योपैथी में उसको अलग तरीके से समझाया गया, नेचुरोपैथी या किसी और यूनानी तरीके में अलग तरीके से समझाया गया, लेकिन सब कुछ बना चेतना से ही है। अच्छा, नाउ आप अगर इस ब्रह्मांड को देखो तो पूरा का पूरा ब्रह्म 5 तत्वों का बना हुआ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड ईथर एलिमेंट, इन 5 तत्वों का पूरा बना हुआ ब्रह्मांड है। उसमें साइंटिस्ट ने, मॉडर्न साइंस ने जब उन 5 तत्वों को और गहराई से समझने के लिए उनको बड़े बड़े माइक्रोस्कोप से अंदर मैग्नीफाई किया, तो ये समझ में आया कि एवरी सिंगल एलिमेंट, हर तत्व बने हैं एटम्स से ही। यानी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द होल एग्जिस्टेंस, होल क्रिएशन, ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हों, सोलर सिस्टम्स हों, स्टार्स हों या प्लैनेट्स हों, और उसके अंदर बनी हुई कोई भी चीज़ हो 5 तत्वों वाली, संपूर्ण ब्रह्मांड एटम्स से बना हुआ है। अच्छा, एटम्स बने हैं न्यूट्रॉन्स, ऊपर लगे हुए प्रोटॉन्स और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स से। ये एटम का स्ट्रक्चर है। अच्छा, साइंटिस्ट ने जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बने हुए एटम का जो केंद्र है और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके बीच की जो खाली जगह है उसको टैप किया, तो उनको समझ में आया ये खाली है ही नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड वो जिस एटम्स से बना है, एटम के अंदर या 2 एटम्स के बीच में जो खाली जगह दिख रही है, उसको जब समझा गया तो समझ में आया नथिंग इन द वर्ल्ड इज एम्प्टी। एटम के अंदर न्यूक्लियस और घूमते इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो खाली जगह है वहां प्योर एनर्जी मिली उनको, मॉडर्न साइंस को। माने क्या, इस एनर्जी का फील्ड है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। जहां एटम सबसे नजदीक आ गए हैं वो पृथ्वी तत्व बना है, उससे कम कंडेंसेशन है एटम्स का, उसमें उसको जल तत्व कहते हैं। उससे कम कंडेंसेशन है उसको वायु, और उससे कम अग्नि। आप इसको अगर समझना चाहो तो माचिस की तिली जला के देख लो, ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत काम आएगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप देखो, माचिस की तिली को जलते हुए देखोगे, अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है तो और क्लियरली दिखाई देगा। आप मैग्नीफाइंग ग्लास में से अगर जलती हुई तिली को देखो तो पृथ्वी तत्व है माचिस की तिली, और आग जल रही है। आग कभी भी पृथ्वी तत्व को, तिली को स्पर्श नहीं करती। यू विल सी लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द अर्थ एलिमेंट, यानी इवेपरेशन हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। मेल्ट होके लिक्विड भी आग को स्पर्श नहीं करता, लिक्विड इवेपरेट होता है और फिर आग पकड़ता है। माने क्या, पृथ्वी से जल, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आकाश तत्व हो रहा है। अच्छा, दुनिया की किसी भी चीज को आप इनफ अमाउंट ऑफ फायर एलिमेंट देते जाओगे, जलाते जाओगे, तो एग्जैक्टली वही बिहेवियर करेगी वो। हम जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट माने क्या है, पृथ्वी तत्व से जल तत्व में कन्वर्जन हो रहा है। इवेपरेशन पॉइंट माने जल तत्व से वायु तत्व में कन्वर्जन हो रहा है। एंड बर्निंग पॉइंट माने वायु तत्व आकाश पकड़ रहा है। माने मेरा तात्पर्य ये है, पूरा ब्रह्मांड जो 5 तत्वों का बना हुआ है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है, वो एटम से बने हैं, और एटम के अंदर की खाली जगह में आकाश तत्व में बहुत सारे एनर्जी है। आपने अगर वो इक्वेशन सुना हो E इज इक्वल टू mc², उसमें जो E है, वो जो एनर्जी है, वो किस चीज से बनी है, तो कहा दैट एनर्जी इज स्प्रेड इन द होल एग्जिस्टेंस। पूरा ब्रह्मांड उसी एनर्जी का, उसी चेतना का क्षेत्र है। अच्छा, ये मॉडर्न साइंस को ये बात समझ में आई लास्ट 150-200 साल में, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इसी बात को हजारों सालों पहले अपने मेडिटेशन से, अपने शार्प इंटेलिजेंस से रिकॉग्नाइज किया था और डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं योग वशिष्ठ नाम के ग्रंथ में कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही चेतना का बना हुआ है। वो इस एनर्जी को चेतना कह रहे हैं। और
उसको इंग्लिश में अगर कहें तो कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस से बना हुआ ब्रह्मांड है, और ये 5 तत्व उसी कॉन्शियसनेस से बने हुए ज्यादा कंडेंस्ड या लेस कंडेंस्ड फॉर्म्स हैं। सबसे जड़ स्वरूप, स्थूल स्वरूप पृथ्वी तत्व कहा है, और सबसे सूक्ष्म स्वरूप आकाश तत्व कहा है। ऐसी इस एनर्जी का बना हुआ ये ब्रह्मांड है। अब हम अपने शरीर पर आते हैं। खास करके अगर हेल्थ की बात की जाए तो ये जो चेतना है, जिससे अपना शरीर भी बना, मन भी बना, अपना जीव भी उसी से बना हुआ, तो इसको जानना पड़ेगा। थोड़ा सा गहराई से जानने से और क्लियरली बातें समझ में आती हैं। आप ये देखें, जिस चेतना से शरीर बना है उसको कहते हैं 3 इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई, 3 एट्रीब्यूट्स वाली चेतना है। कहते हैं सत, चित और आनंद। उसमें सत माने क्या? उसमें जानने की क्षमता अपने आप ही है, वो जानने वाली चेतना है। इसीलिए ऋषियों ने उसको प्रज्ञानम ब्रह्म कहा है, कि ये जानने वाला यूनिवर्स है। इट्स ए नोइंग यूनिवर्स। उसी चेतना से हम बने हैं। जानने की क्षमता अपने अंदर ऑलरेडी है ही, और इतने जन्मों से क्या क्या जानते जानते पहुंचे हम यहाँ। दूसरा, उसका अंदर जो एक अलाइवनेस है, एक जीवंतता है, वो चेतना के अंदर अपने आप ही है। और आनंद ही चेतना का मूलभूत स्वभाव है, कह रहे हैं। प्रसन्नता, आनंद, सुख, ऐसे pleasantness, bliss is a part of the consciousness, is an ingrained attribute of the consciousness. अच्छा, इस एनर्जी से बनी हुई जो चेतना, इस चेतना से बनी हुई जो अपनी सृष्टि है, उसमें अपना शरीर भी उसी से बना है। उसमें अब हम हेल्थ पर अगर आए, जो अपना शायद सबसे बड़ा कंसर्न है आज का, कि इस शरीर को, इस मन को, और फिर फाइनली इस जीव को स्वस्थ कैसे रखा जाए। स्वस्थता जिसको कहते हैं, हेल्थ जिसको कहते हैं, शरीर की स्वस्थता, फिजिकल हेल्थ, मेंटल या इमोशनल हेल्थ जिसको मन की स्वस्थता कहूँगा, और तीसरा जीव की स्वस्थता, वो एक स्पिरिचुअल वेलबीइंग जिसको कह सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा, अपनी चेतना में जब शक्ति का, ऊर्जा का, प्राण का संचार हुआ हो, तो अपने आप स्वस्थता एस्टैब्लिश होती रहती है, वेलबीइंग एस्टैब्लिश होता रहता है, हेल्थ एस्टैब्लिश होती रहती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सो एवरी डे थोड़ा सा योगासन हो। अपने शरीर में जहाँ जहाँ वो जो लिम्फ नोड्स हैं, या जो शरीर के एक एक अंग में नेचर ने, है ना, वो जैसे कचरा पेटियां रखी हुई हैं, कूड़ादान रखा हुआ है, तो उसको रेगुलर बेसिस पे ड्रेन करते रहना बहुत ज़रूरी। उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज, उसके लिए थोड़ा सा योगासन, और फिर प्राण चढ़ाने के लिए मैं इसका एक रहस्य बताता हूँ सबको। आप ये मॉडर्न साइंस को कभी कभी ये रहस्य पता नहीं होते। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों से इसको एक्सप्लोर किया है, तो बड़े गहरे रहस्य पता है। अब कभी कभी मॉडर्न साइंस क्या समझता है, हम सांस अंदर लेते हैं, फेफड़ों में सांस जाती है और वहीं से बाहर आ जाती है, और फिर उसमें ब्लड के साथ का इंटरेक्शन होके ब्लड प्यूरिफिकेशन हो रहा है। ये जो फिजिकल एस्पेक्ट है ब्रीदिंग का, वो मॉडर्न साइंस को समझ में आया है। लेकिन ब्रीदिंग का एक सूक्ष्म कार्य भी है। आई टेल यू व्हाट इट इज। अपना जो नासिका का अग्रभाग है, ये जो त्रिकोणाकार नासिका का अग्रभाग, वहाँ से इसको समझने की चेष्टा करिएगा। यहाँ से पूरे शरीर में फैला हुआ नाड़ियों का तंत्र है, मेरिडियंस हैं, एनर्जी चैनल्स कहते हैं इनको। इसको समझाऊंगा मैं। जैसे ब्लड को शरीर के एक एक कण तक, एक एक ऑर्गन तक और एक एक सेल तक पहुंचाने के लिए आर्टरीज एंड वेन्स का नेटवर्क है, वैसे ही ब्रेथ के अंदर का, श्वास के अंदर के प्राण को पूरे शरीर तक लेके जाने के लिए नाड़ियों का नेटवर्क है, और यहाँ से शुरू होता है।
टिप ऑफ द नॉस्ट्रिल्स से। तो जब हम इस नॉस्ट्रिल्स से शुरू होके पूरे शरीर में फैले हुए नाड़ी तंत्र को समझते हैं और उसकी कार्य प्रणाली को, उसकी फंक्शनैलिटीज को समझते हैं, तो हमें समझ में आता है जहां पर नाड़ियों के तंत्र में, नेटवर्क में कहीं सपोज ब्लॉकेज हो गया, प्राण ठीक से पहुंच नहीं रहा है वहां, तो वहां पर फिर डिस ईज शुरू होता है शरीर में, इल हेल्थ शुरू होगा। इसलिए नाड़ी तंत्र को पूरी तरह एक्टिवेटेड रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके लिए मैं कहता हूँ, जैसे पहले हमने बात की एवरीडे या तो फिजिकल एक्सरसाइज हो, योगासन हो, वैसे ही एवरीडे थोड़ा सा प्राणायाम हो। पातंजलि जी जो इस नाड़ियों के या प्राण के क्षेत्र के पायनियर हैं, उन्होंने एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसको योग सूत्र कहते हैं, पातंजलि योग सूत्र। यूजिंग योर ब्रेथ, गेटिंग द काइंड ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड द कंप्लीटनेस ऑफ लाइफ, मैनिफेस्टिंग द लाइफ दैट यू वांट, ये योग सूत्र का सारांश है, क्रक्स ऑफ द मैटर है। अच्छा, एक तरफ अंदर आने वाली श्वास के साथ आपको शरीर को प्राण मिलता है, ये मैंने डिस्क्राइब किया। वैसे ही श्वास में एक और रहस्य है। कहते हैं बाहर जाने वाली श्वास के साथ आप शरीर और मन से आप जो त्यागना चाहें त्याग सकते हैं। आप कभी कभी है ना सिर्फ फिजिकल फंक्शन समझते हैं ब्रेथ का, लेकिन इमोशनल मेंटल फंक्शन भी है ब्रेथ का। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से आपकी बाहर जाने वाली श्वास के साथ आप बहुत सारी चीजों को बाहर त्यागते जाते हैं। वो त्याग ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप जब इच्छा करोगे तो त्याग सकोगे। इट इज ऑलरेडी डूइंग इट्स वर्क ऑफ एम्प्टीइंग योर माइंड ऑल्सो। आप ये देखना कैसा बना हुआ नेचुरल सिस्टम है ये। एज सुन एज द बॉडी, सॉरी, एज सुन एज द माइंड हैज a particular emotion, corresponding rhythm gets invoked in the breath. ये जो सटल एस्पेक्ट है ब्रेथ का, इसकी तरफ बहुत कम ध्यान गया है मॉडर्न साइंस का। माने क्या, आप ये देखिए, जब कोई गुस्सा हो जाए तो सांस कैसे चलती है, तो आप देखेंगे अपने आप ही तेज हो जाती है श्वास। वही व्यक्ति दुखी हो जाए, डिप्रेस्ड हो जाए, तो श्वास की गति कैसी होगी, ऐसे जैसे एक साय, एक निश्वास के रूप में श्वास निकलती है। अच्छा, जब वही व्यक्ति प्रसन्न और हैप्पी हो तो आप देखेंगे श्वास में एक लयबद्धता है, एक हार्मनी है, एक रिलैक्स्ड गति हो जाती है श्वास की। कुदरत का दिया हुआ ये रिलीज सिस्टम है अपने पास। जैसे अंदर आने वाली श्वास शरीर को प्राण शक्ति देती है, वैसे बाहर जाने वाली श्वास शरीर में से तो कचरा निकालती ही है बाहर, मन का भी कचरा बाहर उड़ेलती है बाहर जाने वाली श्वास। ये रहस्य है। तो उसका उपयोग करके मैं ये कहता हूं, आप अपने मन से जो त्यागना चाहें, कोई नेगेटिव इमोशन त्यागना चाहें, बाहर जाने वाली श्वास के साथ त्याग सकते हैं। उस कला को जीवन जीने की कला कहते हैं। सुदर्शन क्रिया नाम की एक ब्रीदिंग टेक्निक है जिसके द्वारा आप अपने मन की शुद्धि कर सकते हैं। जैसे हम शरीर को नहलाते हैं एवरीडे, शरीर की सफाई करते हैं, घर को साफ करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, वैसे ही सुदर्शन क्रिया ये हर रोज की जाने वाली मन की सफाई है। ये याद रखें, मन जितना भूतकाल के प्रभावों से मुक्त होता है, उतना ज्यादा अवेलेबल होता है वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीने के लिए। जीवन अब है, नाउ। देखिए, मैं 10 बार चुटकी बजाऊंगा तो पहली 9 चुटकी पास्ट हो गई। राइट नाउ only this moment is available to you to live, isn't it?
यही मोमेंट है जीने के लिए। तो जब आप अपना ध्यान, अपना अटेंशन ब्रेथ पर रखते हो, आपका ब्रेथ प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है आपके माइंड को, और आप फिर जो मन से त्यागना चाहें वो त्याग के फ्री हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, फिर एक बात है, एक तो फिर से एक बार सिनॉप्साइज कर रहा हूँ। एक तो शरीर की स्वस्थता के लिए थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज, योगासन, प्राण को चढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्राणायाम। प्राणायाम के बहुत प्रकार हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, या भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत सारे प्रकार हैं। सुदर्शन क्रिया एक बड़ा सुंदर, सुदर्शन क्रिया इज अ मदर ऑफ ऑल द प्राणायाम्स, आई वुड से। अच्छा, फिर आगे जाने के लिए अपने अंदर की दुनिया के जो मैं सटलर सेक्शंस कह रहा था, उसको समझना चाहिए। आपके मन में जो भाव बार बार जगे होंगे ना, उसकी आदतें पड़ी हुई होंगी, वृत्ति बनी हुई होगी चित्त में, मेमोरी में। Whichever emotion would have got triggered in you again and again, repetitively, it would have formed its tendency in the memory. उस चित्त वृत्ति में से मन को छुड़ाने के लिए, एक बने हुए पैटर्न में से मन को बाहर निकालने के लिए, उस वृत्ति से मुक्ति पाने के लिए और एक तरीका है जिसको ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। और गहराई में डूब के मेडिटेट करने से चित्त के गहरे लेवल पर पड़ी हुई जो भी वृत्तियां होंगी, टेंडेंसीज होंगी, आप उन टेंडेंसीज को पहचानिए। मैं थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। दो प्रकार की टेंडेंसीज दिखेंगी आपको। आदतों का अगर ढांचा देखें तो कुछ आदतें आपके जीवन को नुकसान करने वाली आदतें दिखेंगी, जिसको क्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं, और कुछ आदतें आपके जीवन को बहुत लाभ करने वाली भी आदतें होंगी। अच्छा, आपका इंटेलिजेंस इतना शार्प है, आप देखोगे आपको पता ही है कौन सी नुकसान करने वाली आदत है और कौन सी लाभ करने वाली आदत। जैसे ही मैं एक लिस्ट बोलूंगा ना, आप खुद ही बोलोगे कि ये नुकसान वाली है, ये लाभ वाली है। मैं एक लिस्ट दे रहा हूं आपको, देखिए। गुस्से की आदत नुकसान करती है, चिंता की आदत नुकसान करती है, लेकिन प्रेम करने की आदत बहुत लाभ करेगी। उत्साह की आदत लाभ करने वाली है। जिम्मेदारी लेने की आदत लाभ करती है, लेकिन सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला ईगो हमेशा नुकसान करेगा। तो इन नुकसान वाली आदतों को और लाभ करने वाली आदतों को पहचान कर, आइडेंटिफाई करके, नुकसान करने वाली आदतों से मन को छुड़ाने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए रेगुलरली ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये बात है। बहुत साइंटिफिक चीजें हैं ये। हम कभी कभी उसको है ना, जैसे स्पिरिचुअल या कभी कभी इवन रिलीजियस मान लेते हैं। हम समझते हैं ओम यानी सिर्फ हिंदुत्व के साथ जुड़ा हुआ। ऐसा नहीं है माय डियर्स, ये सब साइंटिफिक प्रक्रियाएं हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले जीवन को बहुत गहराई से समझने के बाद अपने ही जीवन के कल्याण के लिए बनाए हुए फॉर्मूलाज हैं कुछ। मैं फिर से एक बार लिस्ट दे रहा हूँ। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज और योगासन, प्राण को चढ़ाने के लिए प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, मन की अंदर की चित्त में पड़ी हुई वृत्तियों में से मुक्ति के लिए मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन कैसे किया जाए? तो उसका एक सिंपल तरीका है। कभी कभी कुछ लोग समझते हैं मेडिटेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन है। मैं कहता हूँ कॉन्सेंट्रेशन नहीं, उल्टा है, डीकॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा। माने क्या? आप अपने बाहर जाने वाली श्वास के साथ ना अब छोड़ते जाओ। जो भी विचार उठा त्याग दिया, इमोशन उठा त्याग दी, पास्ट में कोई बात याद आ गई त्याग दिया, फ्यूचर में कोई विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन हुआ उसको भी छोड़ते गए, बाहर जाने वाली श्वास के साथ त्यागते गए। होते होते वो चंचल मन धीरे धीरे करते 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 शांत हो जाता, और फिर डूबोगे अपने अंदर। ये सीखना चाहिए हर एक को। एवरीबडी शुड रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ
मेडिटेशन समाधि स्थिति की एक विलक्षण बेनिफिट है। उसको समझ के उसके अंदर अपने आप को, वो क्या कहूँगा मैं, दिन भर में 15 मिनट चाहिए बस। मैं कहूँगा 15 मिनट सुबह, 15 मिनट रात को भोजन से पहले। वो आधा घंटा आपके बाकी के 23.5 घंटे को और सुंदर बना देगा। फिर से एक बार, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगासन्स, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन, और फिर एक निश्चय। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ निश्चय आपको बहुत काम आएंगे डे टू डे एक्टिविटी में, अपने आप को, अपने जीवन को समृद्ध बनाए रखने के लिए, सुंदर बनाए रखने के लिए। निश्चय क्या करें? मैं उसको कहता हूँ अपने मन को ऑब्जर्व करना सीखो। ये जो मोमेंट टू मोमेंट लाइफ जा रहा है, बाहर की दुनिया व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से बनी हुई है। अंदर की दुनिया मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से बनी है। तो मैं कहता हूं आपके अंदर की दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है उसकी तरफ नजर रखना सीखें। ये पहला स्टेप, समझिएगा इसको। बाहर की दुनिया को हम देखते हैं आंखों से, सुनते हैं कानों से, सूंघते हैं नाक से, जीभ से टेस्ट करते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं। इन 5 इंद्रियों से हम बाहर की दुनिया को ग्रहण करते हैं। वैसे ही अपने मन की आंख से अपने अंदर नजर रखना चाहिए। किसके साथ आपके मन में क्या भाव उठ रहे हैं, उसकी तरफ नजर रखना। अच्छा, एक बार ऑब्जर्व करना सीखे तो उसके बाद का दूसरा स्टेप है फिल्टर लगाने का। कौन सा भाव रखने योग्य है और कौन सा भाव त्यागने योग्य है, ये विवेक का फिल्टर है। कोई भाव जगा, सपोज गुस्सा जगा, तुम्हारा इंटेलिजेंस ऑलरेडी जानता है कि ये त्यागने योग्य है। तो उसका स्मरण करते हुए, ये मेरे जीवन को नुकसान ही करेगा, ये स्मरण करने के लिए मैं विवेक का फिल्टर कहता हूँ। ऑब्जर्व किया, फिल्टर लगाया, और तीसरा स्टेप मैं कहूँगा, जो भी त्यागने योग्य भाव समझ में आया उसको बाहर जाने वाली श्वास के साथ त्याग देना। ये मैं उसको सरेंडर कहता हूँ, लेटिंग गो कहता हूँ, डिलीट कहता हूँ, रिलीज कहता हूँ। आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। सो ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर। अपने मन को ऑब्जर्व करना सीखें, उसको विवेक का, सयानेपन का, विजडम का फिल्टर लगाएं, और तीसरा, उस जो भी त्यागने योग्य चीजें हैं अपने मन में, उसको बाहर जाने वाली श्वास के साथ त्यागते जाएं। इसका अभ्यास कर लेने पर, जितना अभ्यास करते जाते हैं ना, और आसान होता जाता है तुम्हारे लिए। ये कर लेने पर फिर तुम्हारा मन किसी वृत्ति का गुलाम नहीं रहता। गुस्सा आया तो गुस्सा करना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है, आप त्याग भी सकते हो। कामवासना का भाव जगा तो उसका शिकार होके तुम्हें वो कार्य करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप सिर्फ वो भाव त्याग दोगे तो छूट जाएगा मन। लोभ जगा तो बस जिस चीज को हथियाने के लिए लोभ जग रहा है, तुम उसके गुलाम नहीं हो कि वो हथियानी ही पड़ेगी, वो मेहनत करके उसको अचीव करना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है। बाहर जाने वाली श्वास के साथ उस इच्छा को त्याग दिया तो मुक्त हो जाता है मन। किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होने लगे, बहुत ज्यादा इन्फैचुएशन या मोह होने लगे, तुम उस मोह के शिकार नहीं हो माय डियर। तुम्हारे पास चॉइस है उसको रखना या त्याग देने का। जैसे ही तुम त्यागते हो, वापस अपने आप में स्थित हो सकोगे माय डियर। कोई तुम्हारा मन ले जाए, कोई तुम्हें आकर्षित कर जाए, तुम अपना आपा खो दो, अपनी स्वस्थता खो दो, व्हाट इज द पॉइंट? अच्छा, फिर सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी वाला जो ईगो चढ़ता है, उसके शिकार नहीं हो तुम, उसके गुलाम नहीं हो तुम जब चाहो उसको त्याग सकते हो। ये जो स्किल है ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर वाला, मैं उसको फिर से एक बार समझा रहा हूं। क्या रखने योग्य है और क्या त्यागने योग्य,
ये जो विजडम है, ये जो सयानापन है, उसको विवेक कहते हैं। और तुम जब जो भाव त्यागना चाहो, वो त्यागने के लिए जो मुक्ति का भाव है अपने अंदर, मुक्ति की एक स्ट्रेंथ है, उसको वैराग्य कहते हैं। इस विवेक और वैराग्य के कॉम्बिनेशन से अपने आप को ऑब्जर्व करके, फिल्टर लगाते हुए, जो भी त्यागने योग्य चीज़ है उसको त्याग के अपने मन को मुक्त करते जा सकते हो, while you are operating in the world, while you are taking care of your families and your businesses, while you are working in the uh, worldly matters. Be successful in the worldly matters, but don't let impurities creep in your inner world, is the art of living. बाहर की दुनिया के ऊपर प्रभुत्व पाते पाते अंदर अगर कुछ गड़बड़ इकट्ठा कर ली, तो ये मैं ये कहता हूँ परिपक्वता की कमी है। अंदर की स्वस्थता बनाए रखते हुए बाहर सक्सेसफुल हुए, तो ये जीवन जीने की कला है। सबको बहुत बहुत प्रेम। और इसी बात को और आगे ले जाने के लिए अगर आपको रस आ रहा है इन बातों में, तो ऋषि नित्य प्रज्ञा के YouTube चैनल पर आपको धर्म सीरीज नाम की एक सीरीज ऑफ वीडियोस मैंने रखे हैं, प्लीज़ गो थ्रू देम। ऋषि नित्य प्रज्ञा के YouTube चैनल पर धर्म सीरीज, माया सीरीज, ये दोनों सीरीज रखी हैं, बहुत यूजफुल होंगी आपको। इफ़ यू हैव एंजॉयड द वीडियो टुडे एंड इफ़ यू वांट टू टेक दिस एक्सप्लोरेशन फॉरवर्ड इन योर लाइफ, please go through these two video series. I am sure it will bring a huge benefit to your own life. सबको बहुत बहुत प्रेम और प्रणाम। और हमेशा मैं ये कहता हूँ, जिस धरोहर से हमें ये फैंटास्टिक ज्ञान उपलब्ध हुआ है, उस भारत माँ के लिए मैं एक वंदे मातरम का उच्चारण करूँगा, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित ध्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामलां मातरं, वंदे मातरं। भारत माता की जय। जय गुरु।